سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اللہ عز و جل کا ذکر اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھے، وہ قیامت کے دن جب اس کی جزا دیکھیں گے تو ان پر حسرت طاری ہوگی، اگرچہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر عالمی مدنی مرکز میں مجلس عشر اور اطراف گاؤں وغیرہ کے بہت سارے اسلامی بھائی الحمدللہ تشریف لائے ہوئے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو اسی حوالے سے ایک سوال کرنا تھا۔ گاؤں گوٹھوں میں معمولی باتوں پر بہت بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک واقعہ اتار پور شکارپور میں ہوا تھا کہ ایک گدھا جو ہے وہ کھل کر کسی کے کھیت میں چلا گیا تھا، تو وہاں سے اس نے پانی پیا اور ان کے کھیت میں کھایا، تو اس معمولی بات پر پاپا 110 خون ہو گئے۔ یہ 110 خون ہو گئے پاپا، میری معلومات کے مطابق جو میں نے آخری فیصلہ ہوا تھا نا اس پر، تو اس حوالے سے آپ ہمارے اسلامی بھائیوں کی تربیت فرمائیں۔ یہ جھگڑے بہت زیادہ ہوتے رہتے ہیں پاپا، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اس طرح کے واقعات اس بات کے متقاضی ہیں کہ وہاں مدنی کام بڑھانے کی سخت ضرورت ہے۔ خالی میں آپ کو بولوں گا آپ نے کون سا اسلحہ اٹھایا تھا اور کون سے بندے قتل کیے تھے، اور جنہوں نے ایسا کیا وہ یہاں کون بیٹھا ہوا اس میں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو کیس سن کر مدنی پھول کا لین دین کر لیں گے۔ تو اب اصل مدنی گلدستہ یہ کہ وہاں پر مدنی کام کی آپ کو دھوم دھام کرنی ہے، تو اس طرح کے لوگوں تک آپ کا مدنی پیغام پہنچے گا اور ان کی اصلاح ہوگی، تب بھی یہ سارے جو جھگڑے ہیں نا ان کا کلا کما ہوگا، ورنہ وہ تو ہوتے رہیں گے، ہم خوش ہوتے رہیں گے کہ ہم نے خوب اس پر کلام کیا، بڑے مدنی پھول، بڑی روایتیں بیان ہوئی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، غلط ہے، لیکن جن کو سیٹ کرنا ہے انہوں نے تو سنا ہی نہیں نا، وہ تو اپنی جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو جا کے ان کو انفرادی کوشش کرنی ہے، جا کر ان کو سمجھانا ہے، تبھی کام ہوگا۔ اب آپ اپنے مدنی قافلے بڑھا دیں، اس طرف زیادہ مدنی قافلے سفر کریں، وہاں جا کر جو مسجدیں جہاں موقع ملتا ہے وہاں اپنے درس، چوک درس وغیرہ کا سلسلہ شروع، مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیبیں بڑھا دیں، تو 12 مدنی کام وہ بڑھا دیں گے نا، تو اللہ نے چاہا تو یہ لڑائی جھگڑے بھی دم توڑ جائیں گے، ورنہ ہم یہ آپس میں بیٹھ کر اس کی مذمت کرتے رہیں گے تو شاید کچھ بھی نہیں بنے گا۔ اب کام کریں، کام کو سلام ہے انشاءاللہ، خوب مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ باپا جان میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ عورتوں کا قبرستان جانا کیسا ہے؟ منع ہے، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم،
अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब। अरे बाबा जान की खिदमत में अर्ज गुजार हूँ कि अगर वालिदैन बुजुर्ग हों, उनकी भलाई के लिए कोई सख्ती करनी पड़े, इसके लिए एक रहनुमाई फरमा दें। मतलब बीमारी की वजह से वो घर से मेंटली अपसेट की वजह से घर से बाहर जाने की कोशिश करें, उन्हें ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश करें अगर, तो इसके लिए रहनुमाई फरमा दें। आपकी मुराद ये है ना कि अगर किसी के वालिदैन में से किसी का कोई ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो जाए, अब वो इस बिना पे जो ना वो घर से भागने की वालिद अगर करें, तो उसमें तो रोकेंगे कि उनका तहफ़्फ़ुज़ इसी में है कि उनको रोका जाए। अगर हम नहीं रोकते तो उनको तकलीफ होगी। हिफाजत इसी में है कि उनको हम बाहर ना जाने दें, चूँकि ये तो ज़ाहिर है कि अपने होश में है ही नहीं, और ये पता नहीं कहाँ चले जाएं, गाड़ी के आगे आ जाएं या नहर में गिर जाएं, कुछ भी नुकसान हो सकता है, तो इनको रोकना ही पड़ेगा। इनको जरर से बचाना जरूरी है, नुकसान से बचाना। सख्ती से मुराद मारधाड़ नहीं करनी है भाई, रोक देना है, दरवाजा बंद कर देना है, लॉक कर देना है, ताला लगा दें अंदर से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। प्यारे बापा जान, मैं कुछ अर्सा पहले सन 2011 में आया था, तो बापा जान आपसे मुलाकात नहीं हो सकी थी। तो बापा जान मुझे हेपेटाइट सी की बहुत तकलीफ थी, तो शहजादा अतार से मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने शहजादा अतार से जब ये बात बताई तो शहजादा अतार ने मुझे जब ये दम किया तो उस दिन से आज तक मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। फिर आपने शुक्राने में क्या किया, ये भी सुनना शायद पसंद करेंगे। पापा जान जैसे आप हुक्म करेंगे। अभी हुक्म का इंतजार है। हाँ जी पापा, आपके हुक्म की तमील होगी। मैं यहाँ बिठा लूंगा मदनी तरीक़त गाह पे, फिर बैठ जाऊंगा पापा। ऐसा करें कि जो आप कर सकें वहीं रहकर मदनी काम करें। हर महीने 3 दिन मदनी काफले में सफर की तो पक्की नियत हो जाए, वो सभी की हो जाए। मदनी काफले की सफर, फैजान सुन्नत का दर्स देने की नियत, मदरसतुल मदीना बालिगान पढ़ने की सलाहियत है तो उसकी तरबियत लेकर पढ़ाने की अगर है तो, वरना पढ़ना, और ये सब 12 मदनी काम। लब्बैक बापा। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। 3 दिन के मदनी काफिले में हाजिर हुआ हूँ डेरा गाजी खां से। मेरा नाम बख्तियार हैदर अत्तारी है। इंशाअल्लाह नियत है कि 12 मदनी काम कोर्स भी करूँगा इंशाअल्लाह सुवजल। और बाबा जी मेरा सवाल ये है कि मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करना क्या ये सुन्नत है? फतवा रज़विया शरीफ वगैरह में लिखा है, शामी के हवाले से भी फतवा अफ्रीका में तो मैंने पढ़ना याद पड़ता कि जो अपने घर में मिट्टी के बर्तन बनवाता है, फरिश्ते उस घर की ज़ियारत को आते हैं। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मिट्टी के बर्तन थे सरकार के पास सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस्तेमाल किए नहीं किए ये मैंने पढ़ा नहीं है, बर्तन मिट्टी के थे। और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान भी मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे, इस तरह का भी पढ़ा है। तो अब लफ्ज़े सुन्नत के साथ कि मिट्टी के बर्तन में खाना सुन्नत है, ये सराहतन मैंने नहीं पढ़ा, इसलिए मैं मिट्टी के बर्तन में खाना सुन्नत है ये जुमला बोलने से बचता हूँ। यही कि नियत में भी यही है कि सवाब के लिए मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करूंगा, मैं नियत इस तरह करवाता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। सद महमूद अत्तारी, दर्जे दौरे हदीस, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना। बाबा जान आपसे सवाल ये आज है कि हम बाज़ औक़ात मुताला करते हैं तकब्बर, हसद, रियाकारी, बुग़्ज़ वगैरह के बारे में। उस वक्त बाबा जान जज्बा मिलता है लेकिन बाद में भूल जाते हैं और इस पर अमल नहीं कर पाते। बाबा जान ऐसा इलाज अता फरमा दीजिए कि जिस पर हम हमेशा से उस पर अमल कर सकें। मा तकर्ररा तकर्ररा, कि जो बात बार बार दोहराई जाती है वो दिल में करार पकड़ लेती है। ये मक़ूला है, ने कहावत मुहावरा। तो एक बार पढ़कर हम छूटे पड़े होते, पढ़ते भी बेतवज्जुही के साथ बाज़ औक़ात और बेदिली के साथ। तो इसमें पढ़ने में भी ये बेहतरी है
कि आदमी इस तरह पढ़े कि इसके कानों में आवाज जा रही हो, जबान से पढ़े, तो ये याद करने में इसमें भी सहूलत रहती है याद करने में। और बार बार पढ़े तो ये मतलब दिल में करार पाएगी, दिमाग में नक्श होगी, और फिर जो कुछ पढ़ा उसको अमली जामा पहनाए, दूसरे को बताए, कि दूसरों को बताने से, अमल करने से भी ये बातें याद होती है। तो ये कोशिशें करेंगे ना, इंशाअल्लाह मदीना हो जाएगा। पापा जान, आपने जो हदफ अता फरमाया था दीन दुनिया की अनोखी बातें और कुफरी कलमात के बारे में सवाल जवाब तो पहले पढ़ ली थी, अब दोबारा शुरू में 160 सफ़े हो गए और दीन दुनिया की अनोखी बातें बाबा जान पूरी मुकम्मल पढ़ ली। बाबा जान दिन में पढ़ी 8-9 दिन। अल्लाह, इनको इस वक्त दो। कौन सी मिसवाक लोगे? जो आप बता। नहीं, तो इसमें कुछ याद है। अब इसमें दीवानगी फैसला करेगी, अक्ल फैसला नहीं करेगी। दीवानगी क्या फैसला करेगी समझते? कौन समझता है? हदीस शरीफ जो है वो तसव्वुर किस किस का है? अच्छा, दाढ़ी नहीं रखी लेकिन बात पते की कर गई है, ये इनको दे दी जाए। आपने तो मदनी नुक्ता नहीं समझा था, शायद समझ गए थे। अब आप भी कुछ दे दो ताकि ये भी खुश हो जाए, वरना इनको यूं होगा कि मुझे ये मिल जाए। मदनी नियत इंशाअल्लाह ये तो शुरू कर दी है, एक मुट्ठी हो जाएगी, तो बाबी कर ली इंशाअल्लाह। मरकजी दारुल-उलूम जामिया गौसिया रिजविया मिसबाह-उल-उलूम में मैं मुदर्रिस हूँ, और हुजूर की बारगाह में मेरी गुजारिश ये है कि मैं 3 दिन के तरबीती इज्तिमा में आया हूँ, और गुजारिश ये पेश करनी है कि मैं कई सालों से हुजूर सैयदी दाता अली हजवेरी की बारगाह में इस नीयत और इरादे से हाज़िर होता रहा कि मेरा मुर्शिद जो है वो मेरी तरफ कोई इशारा हो जाए। तो फिर कई सालों के बाद मुझे जो इशारा हुआ वो आपका था, और आप मेरी ख्वाब में तशरीफ़ लाएँ। आपने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे कई मंजिलें भी तय करवाई हैं। और फिर मेरे एक साथी ने बताया कि वहाँ तो मुलाकात नहीं होती, मैं परेशान रहने लगा। और फिर ख्वाब में आप आए और आपने फरमाया आप आ जाएं, बाबुल मदीना कराची में आ जाएं, आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। हुजूर मैं नूर की बरसात हो, हुजूर मैं आपके कदमों में हाजिर हूँ, मुझे अपनी गुलामी में कबूल फरमा लीजिए। कबिल सिलसिला आलिया कादरिया रज़विया में आपको दाखिल करता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। मेरा एक सवाल है कि इस्लामी भाई दौरान बयान मदनी चैनल की तरगीब दिलाते हुए कुरान पाक की आयत का तर्जुमा करते हैं कि ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं, और यूँ तरगीब दिलाते हैं कि इस आयत पे अमल करना यूँ आसान है कि आप मदनी चैनल देखते रहें, अपने घर में मदनी चैनल ऑन कर दें तो इस आयत पे अमल हो जाएगा। इसके बारे में आप क्या रहनुमाई फरमाते हैं? आयत से इस्तिदलाल तो ना किया जाए, लेकिन एक जरिया तो है अपने आप को और बच्चों अहल को जहन्नम की आग से बचाने का। मदनी चैनल एक जरिया है, दर्स भी जरिया है, इज्तिमात भी जरिया है अपने आप को जहन्नम से बचाने का। ये कह सकते जरिया है। इस आयत पर अमल हो जाएगा, ये इसमें हसर तो नहीं है ना कि सिर्फ ये करेंगे तो ही तो अमल हो जाएगा। बाकी वो जराए भी हैं इस्लाह के लिए, कुतुब बीनी भी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। लाहौर से आया हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि माँ बाप का अदब व एहतराम किस तरह बजा लाना चाहिए? एक रिसाला मकतबतुल मदीना का है, समुद्री गुंबद, उसको अगर आप पढ़ लेंगे ना तो इंशाअल्लाह कुछ न कुछ आदाब उसमें माँ बाप के आपको मालूम हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु मोहम्मद सिद्दीक अत्तारी कादरी काबिनात मौजूद, इनकी मदनी कारकर्दगी जो लिखी हुई है, हर माह 3 दिन के मदनी काफिले में सफर करते हुए इनको 12 साल हो गए।
उशर जमा करने में भी इनकी नुमाया कारकर्दगी है या नुमाया तरक्की तरक्की तकरीबन माहाना 22 दिन कमोबेश अपने घर से बाहर रहते हैं, मीरपुर खास में रहते हैं, लेकिन नवाब शाह और दीगर इलाकों में मदनी कामों के लिए मदनी काम और उशर वातराफ गांव के हवाले से इनका जदवल रहता है और हर 12 माह में 1 माह इनका मदनी काफिला होता है। ये भी हर महीने 3 दिन भी 3 दिन, और कभी थल चले जाते हैं 1-1 महीने के लिए, कभी कहीं, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और अभी यहाँ तरबियती इज्तिमा में भी सबसे ज्यादा इस्माइल भाई को लिया है। सबसे ज्यादा तादाद इनके पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तादाद कादरी काबीनात की है। इनको क्या तोहफा मिले? मदीने का टिकट चाहिए। इंशाअल्लाह इनको मदीने का टिकट पेश किया जाएगा। उमरा शरीफ का इनको टिकट इंशाअल्लाह तोहफे में मिलेगा। मुबारक बाबा, इस पर इस्तिकामत की मोहर अल्लाह इस्तिकामत नसीब फरमाए और दूसरों को भी अल्लाह करे ये जज्बा मिले। काम तो अल्लाह की रजा के लिए करना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। सफदर अली पंजाब चन्योट, ये हमारे साथ उलमा जो हैं ये दस्तबोसी के ख्वाहिश में। मैं दस्तबोसी की इजाजत दूं? दस्तबोसी की होगी जी, ये कैसे दूं? हाथ मिलाने की सआदत मैं हासिल कर लूं। देखो ना, इनकी मोहब्बत है पंजाब से आए, वो शेर भी तो वो भी पंजाब से तशरीफ लाए हुए। आपका शेर भी तो है ना, मुझको है अत्तार सुन्नी आलिमों से प्यार है, इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। बापा करम फरमा दे। मदीना ये बताओ कि अवाम का रुतबा ज्यादा होता है या उलमा का? उलमा का। बस खलास है ना। उलमा ये दस्तबोसी है, इनकी आजी है। मुझे इनकी मुलाकात से मुशर्रफ होना चाहिए। मेरे लिए भाई से शहादत इसको समझना चाहिए मुझे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। अमीर अल सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है कि दावत इस्लामी में सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नारा कब शामिल हुआ और ये किस वजह से क्या देख कर ऐड किया गया? ये वो हरमैन तैयबैन में देखे थे सल्ले अलन नबी लिखा हुआ था, कहीं के बोर्ड लगे होते। वो जिसने भी नारा पहले लगाया तो उसके जहन में यूं बैठ गया कि वहाँ सल्लु अलल हबीब लिखा होता है। तो उसने अपने इजहार किया इस्लामी भाइयों में चंद से कि मेरा जी चाहता है, या इज्तिमा में इजहार किया कि मेरा जी चाहता है कि बस यार हम सल्लु अलल हबीब बोले और सब दुरूद शरीफ पढ़े। तो यूं मतलब वो सल्लु अलल हबीब, अल्लाह ने इस नारे को इतनी मकबूलियत बख्शी कि अब ये सुन्नियों के तो मेरा ख्याल हर जगह लगता होगा, इज्तिमात में, जलसों में, आस्थानों पे, मेरा गुमान है। क्योंकि अब सल्लु अलल हबीब से इख्तिलाफ कौन करेगा? तो ये सब जगह, वरना कम से कम दावत इस्लामी के उसमें तो ये हमारी एक तरह से पहचान बन गई। किस साल से शुरू हुआ? किस साल से? सिन याद नहीं है, सना याद नहीं है। आते हुए बापा मेरी वालिदा ने कहा था कि अमीर अल सुन्नत से है ना उम्रे के लिए दुआ करवाना। अल्लाह मदीना बापा सबके लिए चल मदीना की दुआ कर दे। बापा बहुत दूर से है, बापा सबको नवाजे, बापा सबको चल मदीना की दुआ दे दे। बुला लो गम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो गम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो गम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह। पे शबीर रोशन
فاطمہ حیدر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاک اشرفی کابینہ مٹھیاں سے محمد مبشر غفور اتاری. آپ کا ایک شعر ہے، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. بابا جان ہمارے وہاں پہ اس کے بارے میں کچھ اس طرح کہتے ہیں کہ اس میں اپنی دھوم مچانے کی جو ہے یہ طلب ہے، تو اس کے بارے میں آپ دعوت اسلامی کی دھوم مچانے کا اتنا بولا کیا اس میں حرج کیا اس میں؟ وہ کچھ اس طرح کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے یہ اپنی واہ واہ کرنے کے لیے، اپنی کسی فرد کا تو ہے، فرد کا نہیں ہے، تنظیم کا ہے. تو کیا اس میں پکڑ کیا ہے، گرفت کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کچھ اس طرح جو ہے وہ کہا تھا کہ یہ اس میں جو ہے وہ اپنی تنظیم کی یا اپنی جو بھی جماعت ہے اس کی واہ واہ بنانے کے لیے یا اس کی. ہاں تو ہم تو واہ واہ کے لیے تو واہ واہ تو کریں گے نا. دعوت اسلامی کی واہ واہ کرتے ہیں، مدنی چینل کی واہ واہ کرتے ہیں. یار لوگ اپنے بچوں کی تو واہ واہ کرتے ہیں. دعوت اسلامی تو ہمارا مائی باپ ہے، اس نے ہم کو بولنا سکھایا، ہم کو مطلب سنتیں سکھائی، عشق رسول کی شدھ بدھ دی، مدینے کا غم دیا، درد دیا. تو جس کا کھانا اس کا گانا. ہاں اپنی ذات کی جو واہ واہ کرے نا اس پر چلو کوئی اعتراض بنتا بھی ہے. دعوت اسلامی تو ایک فرد کا نام تو نہیں ہے، لاکھوں لاکھ مسلمان اس میں شامل ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہو، حضرت کچھ اور فرمانا چاہتے ہو. ہر برس وہ قافلوں کی دھوم دھام آہ سنیے اور غفلت کیجیے. بتائیے شعر کس کا ہے؟ اب یہ جس کا شعر ہے وہ شاعر کیسا؟ میں دھوم دھام، وہ بھی دھوم دھام کی بات کر رہا ہے. جانتے ہو شاعر کون ہے؟ جواب درست ہے، میرے اعلی حضرت کا شعر ہے، یعنی کہ ہر برس مدینے کے قافلے رواں دواں ہوتے ہیں. حج کا موسم آتا ہے تو خوب قافلے سفر کرتے ہیں، دھوم دھام ہو جاتی ہے. ہم سنتے ہیں پھر غفلت میں پڑ جاتے ہیں، ہم خود جاتے نہیں. یہ مفہوم بنتا ہے. مدنی چینل نے میڈیا کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے الحمدللہ. یعنی کہ پاکستان تو کیا مجھے تو پوری دنیا کا معلوم نہیں ہے کہ بھئی ایسا چینل ہو جس میں عورت اور میوزک نہ ہو اور درست قرآن و حدیث کی روشنی میں درست وہ رہنمائی کی جاتی ہو. یعنی سنیت، دیکھو سنیت یہی درست ہے الحمدللہ. جب جو سکرین پہ آتے ہیں وہ سنا ہے عورتیں ان کی پفنگ بھی کر رہی ہوتی ہیں. ہم کو تو پفنگ ہم نے گھسنے نہیں دیا پفنگ کو. ہمارا شعر جو ہے نا یہ بڑا حاضر جواب ہے. نگران شورا کو کسی میڈیا کے آدمی نے شروع میں کہا کہ تم لوگ پفنگ کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہوتا ہے؟ پسینہ آتا ہے، پفنگ نہیں کرتے. تو بولا اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم تو ملتان کے ہمارے لاکھوں کے اجتماع میں ہم لوگ پسینے میں بیان کرتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے اگر اسکرین پر پسینہ آ گیا تو؟ الحمدللہ. تو بغیر پفنگ کبھی زندگی میں پفنگ میں نے بھی نہیں کروائی، پتہ نہیں ہوتی کیسے. سنا ہے عورتیں بھی کرتی ہیں، مرد بھی کرتے ہیں، وہ اس میں چینلز میں ان کو زیادہ پتا ہوگا. جو اسکرین پر آتے ہیں ان کی
सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल ये अतार के, सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल